پہاڑی علاقے کی خنک سیارات میں تیز رفتار کالی بڑی گاڑیوں کا قافلہ بل کھاتے راستوں پر آگے بڑھ رہا تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی الوینا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کے چہرے پر آنسو خشک ہو چکے تھے اور دھڑکنیں قابو سے باہر تھی۔ وہ بار بار اپنے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کو دیکھتی، مگر وہاں سگنل نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی۔ خدا را، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میری بات تو سنو، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو بس ایک کھیل تھا۔ میری دوستوں نے مجھے ڈیئر دیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے تیکے نقوش والے گارڈ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر گرائی، مگر گارڈ کے چہرے پر سختی تھی، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ پتھر کا بت ہو۔ گاڑی کے انتہائی وسیع فارم ہاؤس کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ چاروں طرف اونچے درخت اور سخت سیکیورٹی کا پہرا تھا۔ گاڑی رکتے ہی گارڈز نے تصدیق امیز انداز میں الوینا کو اتارا اور فارم ہاؤس کے مرکزی ہال کی طرف لے آیا۔ ہال کے وسط میں موجود عالیشان صوفے پر الوینا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ وہ خوف کے ماری سمٹ کر صوفے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور اپنے عبایا کو خود کے گرد مزید لپیٹ لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ ہال کے دروازے ایک جھٹکے سے کھلے اور اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر الوینا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ شراز گردیزی تھا، صوبے کے سب سے طاقتور اور کٹر سیاستدان سینیٹر سکندر گردیزی کا اکلوتا بیٹا۔ وہ اس وقت کلپ لگی گرے شلوار قمیض کالی واسکٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی چھوٹی سی حرکت کو معاف کرنے کا عادی نہیں تھا۔ شایان، سب کو باہر بھیجو اور تم بھی باہر رکو، شراز کی روبدار آواز ہال میں گونجی۔ جی چھوٹے خال۔ شایان نے سر جھکایا اور تمام گارڈز کو لے کر باہر نکل گیا۔ ہال کے بڑے دروازے بند ہو گئے۔ اب ہال میں صرف شراز گردیزی اور الوینا تھے۔ شراز چند سیکنڈ تک ساکت کھڑا سے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب آیا۔ الوینا نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی۔ شراز نے اپنے ہاتھ واسکٹ کی جیبوں میں ڈالے اور انتہائی سرد طنزیہ لہجے میں بولا، تو مس بہادر، وہاں پہاڑی پر تو آپ کی زبان بہت چل رہی تھی، بڑی دلیری سے آگے بڑھی، چٹکی کاٹی اور ایڈیٹ بول کر غائب ہونے کی کوشش کی۔ اب بولو، اب چھیڑو مجھے جیسا وہاں چھیڑا تھا۔ الوینا نے لرزتے ہوئے پلکیں اٹھائی اور روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں آپ کو نہیں جانتی تھی، تم مجھے نہیں جانتی تھی۔ شراز نے ایک کہکا لگایا جس سے الوینا کا دل دہل گیا۔ اس صوبے میں کوئی بچہ بھی ایسا نہیں جو شراز گردیزی کے نام اور اس کے روب سے واقف نہ ہو، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نے یہ سب انجانے میں کیا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس کا غصہ اب واضح تھا۔ تم جیسی لڑکیاں اتنی معصوم نہیں ہوتی جتنا بننے کا ناٹک کر رہی ہو۔ مجھے بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی طرح بتاؤ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ تمہارے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کوئی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تو اپنے کالج کے فرینڈز کے ساتھ ٹرپ پر آئی تھی۔ الوینا نے ہچکیاں لیتے صفائی دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھے ڈیئر دیا تھا کہ جو لڑکا سامنے کھڑا ہے اسے چٹکی کاٹ کر ایڈیٹ بولو، اور وہ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں اکیلے رہ جانے کے خوف سے پاگل ہو رہی تھی، اس لیے وہ میں نے بیوقوف کر دی۔ میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہیں۔ شراز کی آنکھوں میں شک کی چمک مزید گہری ہو گئی۔ اس نے الوینا کی خوف زدہ چہرے اور اس کی آنسوں کا باغوش جائزہ لیا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، سیاست اور خاندانی دشمنیوں کے ماحول میں پلا بڑھا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے والد کی سیاسی مخالفین اسے بدنام کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ شراز نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، اور جیسے ہی تم نے یہ حرکت کی، تمہارے وہ سو کال فرینڈز وہاں سے ایسے غائب ہو گئے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ مس، یہ کہانی بس کسی بچے کو سنانا۔ شراز گردیزی کو پنجانے کے لیے بہت سی کٹ پتلیاں پہلے ہی بھیجی جا چکی ہیں، مگر تمہارا طریقہ کار تھوڑا نیا تھا۔ پبلک پیلس پر مجھے اشتعال دلانا تھا کہ میں کوئی رد عمل دوں، اور وہاں چھپے تمہارے ساتھی میرے ویڈیوز بنا کر میڈیا پر اچھالیں۔ یہی پلان تھا نا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ زویا اور دانیل میرے دوست ہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ الوینا صدمے میں اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ چلائی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دوست اسے اس حال میں چھوڑ کر کہاں چلے گئے، اور یہ شخص کس سازش کی بات کر رہا۔ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ یہ تو اب میں ان سے خود ہی پوچھوں گا نا۔ شراز نے انتہائی سرد مہری سے کہا۔ وہ الوینا کے مزید قریب آیا۔ الوینا نے خوف سے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اسے لگا کہ اب شاید شراز اس کی عزت پر حملہ کرے گا یا اسے تشدد کا نشانہ بنائے گا، مگر شراز گردیزی کے ظرف میں بدتمیزی نہیں تھی،
وہ ایک مغرور اور سخت کے انسان ضرور تھا، مگر کم ظرف یا عیاش نہیں تھا۔ اس نے الوینا کی بے بسی اور وحشت کو محسوس کر لیا تھا، اگرچہ اس کا شک ابھی دور نہیں ہوا تھا۔ شیراز نے نفرت سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے۔ اپنے یہ مگرمچھ کے آنسو بند کرو۔ شیراز گردیزی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور نہ ہی ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ کوئی پلانٹ مہرا ہی کیوں نہ ہو۔ شیراز نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے رخ موڑا اور ہال کا دروازہ کھول کر اونچی آواز میں پکارا، شایان۔ شایان فوراً اندر داخل ہوا۔ جی چھوٹے خان، اس لڑکی کو اوپر والے کونے کے محفوظ کمرے میں بند کر دو، اس کا موبائل ضبط کر لو، اور جب تک میں نہ کہوں اسے فارم ہاؤس سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ شیراز نے حکم دیا۔ پھر اس نے شایان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید کہا، اور سنو، اس کے کالج کے ٹرپ، اس کی دوستی زویا اور دانیال کا پورا بایو ڈیٹا اگلے 2 گھنٹے میں میری ٹیبل پر پڑا ہونا چاہیے۔ مجھے پتہ لگانا کہ اس معصوم شکل کے پیچھے کس کا دماغ کام کر رہا ہے۔ جو حکم چھوٹے خان۔ شایان نے سر جھکایا۔ الوینا نے جب اپنے قید ہونے کا حکم سنا تو وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، آپ مجھے یہاں بند نہیں کر سکتے، میرے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے، پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں۔ مگر شیراز گردیزی نے اس کی التجا کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں قدم بڑھاتا ہال سے باہر نکل گیا، جبکہ گارڈز الوینا کو اوپر کمرے کی طرف لے جانے کے لیے آگے بڑھے۔ کمرے کے وسیع و عریض کھڑکی سے باہر پھیلا ہوا اندھیرا اور درختوں کا شور اس کے دل میں خوف پھیلا رہا تھا۔ وہ رات بھر کمرے کے ایک کونے میں صوفے کے ساتھ زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی تھی۔ روتے روتے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا اور آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھی۔ ہر آہٹ پر اس کا دل سہم جاتا۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنے والدین کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو اس وقت یقیناً اس کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی زویا اور دانیال کا خیال آ رہا تھا کہ اسے یوں تنہا چھوڑ کر آخر کہاں چلے گئے۔ جب صبح کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئی، اسی لمحے کمرے کے دروازے کے لاک کھلنے کی آواز گونجی۔ الوینا ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے اعصاب سنسنا اٹھے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر داخل ہونے والے سفید چادر اڑے نورانی چہرے والی ایک عمر رسیدہ خاتون تھی، جن کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ وہ اس فارم ہاؤس کی سب سے پرانی اور معتبر ملازمہ تھی، جنہیں سب احترام سے بڑی بھی کہتے تھے۔ بڑی بھی نے جیسے ہی کمرے کے کونے میں الوینا کو دیکھا تو ان کے دل میں ممتا جاگ اٹھی۔ انہوں نے ٹرے سامنے میز پر رکھی اور آہستہ قدموں سے الوینا کے قریب آئی۔ میری بچی، تم رات پر زمین پر ہی بیٹھی رہی ہو، اٹھو، شاباش، صوفے پہ بیٹھو۔ بڑی بھی نے انتہائی نرمی اور شفقت سے الوینا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ الوینا نے سہم کر ان کی طرف دیکھا، مگر ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ بڑی بھی کے دامن سے لپٹ کے اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ بڑی بھی، خدا را مجھے یہاں سے نکالے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کوئی بری لڑکی نہیں ہوں، میرے والدین بہت شریف لوگ ہیں، وہ مر جائیں گے اگر انہیں معلوم ہوا کہ میں یہاں قید ہوں۔ الوینا نے ہچکیاں لیتے ہوئے التجا کی۔ بڑی بھی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ انہوں نے اپنے پلو سے الوینا کے آنسو پونچھے اور تسلی دیتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے میری بچی، تمہاری یہ معصوم شکل چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ تم بے قصور ہو۔ یہاں تک لائی جانے والی دوسری لڑکی ایسے نہیں ہوتی، ان کے چہرے پر ایسا خوف نہیں ہوتا۔ پھر وہ جو آپ کے صاحب ہیں، وہ مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ الوینا نے کانپتی آواز میں کہا۔ بڑی بھی کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے پانی کا گلاس الوینا کے لبوں سے لگایا۔ پہلے یہ 2 گھونٹ پانی پیو اور میری بات سنو۔ شیراز بابا دل کے برے نہیں ہیں، وہ اس صوبے کے اتنے بڑے سیاستدان کے بیٹے ہیں، ان کے گرد ہر وقت دشمنوں کا گھیرا لگا رہتا ہے۔ وہ غصے کے تیز ہیں، روبدار ہیں، لیکن ظالم ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے آج تک کسی معصوم یا کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور نہ ہی کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ اگر وہ تمہیں یہاں لاتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ تمہاری حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ تم ڈرو مت، وہ تمہاری عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ الوینا کو بڑی بھی کی باتوں میں کچھ حوصلہ ہوا، مگر اس کا دل ابھی بھی اپنے دوستوں کی بے رخی پر اڑ رہا تھا۔ لیکن میرے دوست زویا اور دانیال، وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے پولیس لے کر کیوں نہیں آئے؟ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ بڑی بھی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، بچی، اس دنیا میں چہروں پر نقاب چڑھے ہوئے ہیں، ناشتہ کر لو، طاقت آئے گی تو حالات کا سامنا کر پاؤ گی۔ اسی وقت فارم ہاؤس کی دوسری طرف ایک پر آسائش اور کتابوں سے سجے
स्टडी रूम में माहौल इंतहाई संजीदा और तनाव से भरपूर था। कमरे के वस्त में बड़ी राइटिंग टेबल के सामने शिराज गर्देसी बैठा था, जिसकी आंखें रात भर ना सोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। उसके सामने ब्लैक कॉफी का मग रखा था, जिससे धुआं उठ रहा था। सामने चीफ सिक्योरिटी गार्ड शयान हाथ बांधे खड़ा था और उसके हाथ में एक मोटी फाइल और अलवीना का स्मार्टफोन था। हाँ शयान, क्या रिपोर्ट है? शयान ने कॉफी का मग उठाते सर तैचे में पूछा। छोटे खान, जो मालूमात सामने आई हैं वो इंतहाई चौंका देने वाली है। शयान ने फाइल मेज पर रखते हुए कहा, हमने उस लड़की अलवीना के मोबाइल का सारा डाटा रिकवर कर लिया है, खासतौर पर वो चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स जो उसके अगवा होने के से चंद मिनट पहले ही डिलीट किए गए थे। शराज ने अपनी गहरी नजरें शयान पर जमाई। सीधे पॉइंट पर आओ, क्या वो लड़की हमारे किसी मुखालिफ की प्लांटेड मोहरा है? छोटे खान, वो लड़की खुद नहीं जानती, वो वाकई मासूम और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है। शयान ने इंकशाफ किया तो शराज को कि आबरू हैरत से उठे। शयान ने फाइल का एक सफा खोलकर शराज के सामने किया। लेकिन जिन दोस्तों को वो नाम ले रही है, जोया और दानियाल, वो कोई आम कॉलेज स्टूडेंट नहीं है। हमारी आईटी टीम ने उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स निकाली है। परसों रात उन दोनों के अकाउंट्स में 50-50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। शिराज ने कॉफी का मग मेज पर पटका। उसकी आंखों में गुस्से के शरारे चमके। किसने भेजे हैं ये पैसे? शयान ने गहरा सांस लेते हुए नाम लिया जिसका शराज को पहले से ही खदशा था। छोटे खान, ये पैसे आपके सबसे बड़े सियासी हरीफ हाशिम खान के राइट हैंड तारिक के अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं। शराज गर्देजी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। तो ये हाशिम खान का खेल था? शराज की आवाज में गैसो खस छुपा था। उसने उस मासूम लड़की को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। प्लान क्या था उनका? प्लान बहुत खतरनाक था खान। शयान ने तफसील बताई। जोया और दानियाल को मालूम था कि आप उस पहाड़ी इलाके में अपने निजी दौरे पर अकेले मौजूद हैं। उन्होंने जानबूझकर अलवीना को उस ट्रिप पर अपने साथ शामिल किया। वहां पहुंचकर उन्होंने अलवीना को वो डेयर दिया, वो आपको चुटकी काटे और बदतमीजी करे। हाशिम खान के रिपोर्टर्स और कैमरामैन वहां झाड़ियों में छुपे बैठे थे। जैसे ही आप उस लड़की पर हाथ उठाते या हमारे गार्ड्स उसके साथ कोई बदतमीजी करते, वो लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर चला देते। अनुमान होता कि सेनेटर सिकंदर गर्देजी के बेटे की पब्लिक पैलेस पर एक तालबा के साथ बदतमीजी और गुंडागर्दी। इलेक्शन सर पर है, ये स्कैंडल गर्देजी खानदान की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देता। शराज ने मुड़कर शयान को देखा। उसका जबड़ा तमतमा रहा था। लेकिन वो वीडियो सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारी मुस्तैदी ने उनका प्लान चौपट कर दिया, शयान ने फखर से कहा। इससे पहले कि हाशिम खान के गुंडे या मीडिया वाले कुछ समझ पाते, हमने उस लड़की को गाड़ी में डाला और वहां से निकल आए। मीडिया वाले इसलिए खामोश हैं क्योंकि उनके पास कोई वीडियो और सबूत नहीं बन सका। वो अब सही मौके के इंतजार में है कि लड़की कहाँ गायब हुई। शराज ने गहरा सांस लिया और अपने बिखरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। और वो मासूम लड़की अब भी समझ रही है कि उसकी दोस्त मजाक कर रहे थे। जोया और दानियाल ने अपनी अयाशी के लिए उस बेचारी की इज्जत और जिंदगी का सौदा कर दिया। कितने कमजोर लोग हैं। उसने मेज से फाइल उठाई और शयान से कहा, चलो मेरे साथ। उस लड़की के सामने से इस मासूमियत का ये पर्दा हटाना बहुत जरूरी है। उसे पता चलना चाहिए कि जिन्हें वो अपना मुखलिस समझ रही है, उन्होंने उसे किस जहन्नुम में धकेल दिया है। अलवीना अभी सोफे पर बैठी सोचों में गुम थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। शराज गर्देसी अपने पूरे जाओ जलाल के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे शयान भी था। बड़ी भी ने शराज को देखा और धीमी आवाज में बोली, शराज बाबा, ये बच्ची बहुत डरी हुई है, जरा नरमी से। बड़ी भी आप बाहर जाए, शराज ने कहा। बड़ी भी ने एक नजर अलवीना पर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा दोबारा बंद हो गया। शराज चंद कदम चलता हुआ अलवीना के करीब आया। तो मिस अलवीना, अपने दोस्तों की याद आ रही है? शराज ने तंसिया लहजे में पूछा। अलवीना ने आंसू साफ करते हुए गुस्से से कहा, हाँ आ रही है। वो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। आप एक बहुत बुरे इंसान होंगे, लेकिन आपको किसी को यूं कैद रखने का कोई हक नहीं है। जैसे मैं बाहर जाऊंगी मैं पुलिस को बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। पुलिस को बताओगी? शराज ने कहका लगाया। मिस अलवीना, काश तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग होता। तुम पुलिस को मेरे खिलाफ क्या बताओगी? यही ना कि शराज गर्देजी ने तुम्हें
हाशिम खान के बिछाए हुए जाल से बचाकर अपने फार्म हाउस में महफूज रखा। हाशिम खान? ये कौन है? मैं किसी हाशिम खान को नहीं जानती। आप क्यों बार बार मुझे किसी साजिश में घसीट रहे हैं? अलवीना चिल्लाई। तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे वो मुखलिस सहेली जोया और तुम्हारा वो दोस्त दानियाल वो हाशिम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शहराज ने मेज पर पड़ी फाइल की तरफ इशारा किया। इस मोबाइल को उठाओ और इसमें मौजूद डिलीट शुदा चैट्स देखो जो शायान ने रिकवर की है। देखो कि तुम्हारी इस चुटकी काटने वाली हरकत की कीमत तुम्हारे दोस्तों ने कितनी वसूल की है। अलवीना ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया। जैसे ही उसने जोया और दानियाल की तारिक नामी शख्स के साथ चैट्स पढ़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां साफ लिखा था कि अलवीना को किस तरह इस पहाड़ी पर लाना है और उसे किस तरह इस्तेमाल करके शराज के पास बेचना है। और नीचे बैंक ट्रांसफर की रसीदों की स्क्रीनशॉट थे जिन पर 50 लाख की रकम वासिया लिखी थी। आखिरी मैसेज दानियाल का था, काम हो गया है, लड़की को हमने शराज के गार्ड के सामने फेंक दिया है, अब वो उसे नहीं छोड़ेंगे। मीडिया को अलर्ट कर दो, हमें हमारी बाकी पैसे बेच दो। ये बढ़ते ही अलवीना के पांव तले से जमीन निकल गई। उसका सर बुरी तरह से चकराने लगा और मोबाइल उसके कांपते हाथों से छूटकर कालीन पर गिर गया। वो जिन्हें अपनी जान से बढ़कर अजीज समझती थी, जिनकी खातिर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी की थी, उन्होंने महज चंद पैसों के लिए उसकी इज्जत, उसके मुस्तकबिल और उसकी जिंदगी का सौदा कर दिया था। नहीं, ये झूठ है। जोया नहीं कर सकती है। दानियाल ऐसा नहीं कर सकता। अलवीना ने अपने सर दोनों हाथों में जकड़ लिया। वो शदीद सदमे की हालत में थी। उसकी आवाज हलक में बैठ रही थी। ये बिल्कुल सच है मिस अलवीना। शराज ने उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में हमदर्दी थी। तुम उनके लिए सिर्फ एक मोहरा थी जिसे उन्होंने गर्देजी खानदान की सियासत को तबाह करने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया। अगर कल रात मेरे गार्ड तुम्हें यहाँ ना लाते तो इस वक्त तुम किसी थाने में मीडिया के कैमरों के सामने मुंह छुपाए बैठी होती और तुम्हारे वालिदैन सदमे में मर चुके होते। अलवीना ने शराज की तरफ देखा। उसकी आंखों फुट का एहसास था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। गद्दारी का इंसाफ उसके लिए किसी मौत से कम नहीं था। दोस्तों की गद्दारी का जहर अलवीना के पूरे वजूद में फैल चुका था। वो इसी तरह साकित और जामिद सोफे पर बैठी खुली आंखों से कालीन को घूरे जा रही थी जहां उसका मोबाइल पड़ा था। आंसू खुश्क हो चुके थे मगर अंदर की टूट फूट उसके चेहरे पर आया थी। शराज करते सी स्टडी रूम में टहलते हाशिम खान की उस बार का जवाब तैयार कर रहा था कि अचानक फार्म हाउस का बैरूनी अहाता गाड़ियों के हॉर्न और गार्ड्स की भाग दौड़ से गूंज उठा। काली लैंड क्रूज का एक बूढ़ा काफला तेजी से पोर्च में आकर रुका। गाड़ियों के दरवाजे खुले और फिर बंद होने की आवाज हॉल तक पहुंची। शयान बुड़बुड़ाता स्टडी रूम में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उठ रही थी। छोटे खान गाजब हो गए। सेनेटर साहब अचानक क्या पहुंच गए हैं और उनके साथ रानिया बीबी भी है। शयान ने घबराई हुई आवाज में इत्तला दी। शराज के माथे पर बल पड़ गए। उसके वालिद सेनेटर सिकंदर गर्देजी सूबे के सबसे सख्तगीर और बेरहम सियासतदान थे जिनके लिए खानदान, साख और इक़्तिदार से बढ़कर कुछ नहीं था। उनके बगैर बताए फार्म हाउस पर छापा मारना इस बात का इशारा था कि हाशिम खान ने अपने जाल का दूसरा हिस्सा चल दिया है। उसने सेनेटर साहब तक ये खबर पहुंचा दी है कि उनका बेटा यहाँ किसी लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा है। शान अलवीना को फौरन अकबी दरवाजे से ऊपर के स्टोर रूम में मुंतकिल करो और सामने नहीं आनी चाहिए। शहराज ने तेजी से हुक्म दिया और खुद हॉल की तरफ बढ़ा मगर इससे पहले कि शयान अलवीना तक पहुंचता फार्म हाउस के दरवाजे खुले। सेनेटर सिकंदर गर्देजी कलफ लगी शलवार कमीज, काली बास्केट और हाथ में पकड़ी वॉकिंग स्टिक के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा था। उनके ठीक पीछे रानिया खड़ी थी, मगरिबी लिबास में मलबूस, स्किन नाइट जीन्स और कीमती चश्मा आंखों पर चढ़ाए, जिसके चेहरे पर हसद और फातिहाना मुस्कुराहट का अजीब इम्तजाज था। रानिया जो कि शराज की कजन थी और गर्देजी खानदान की दोस्त, दौलत और शराज के रोब की वजह से उसे शादी करने के ख्वाब देख रही थी। शराज, ये मैं क्या तमाशा सुन रहा हूँ? सेनेटर सिकंदर की गर्जदार आवाज हॉल में गूंजी। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, आप अचानक क्या, सब खैरियत है? शहराज ने अपने असाब पर काबू पाते नहायत बावकार लहजे में पूछा। तुम मुझसे खैरियत पूछ रहे हो? इलेक्शन सर पर है और तुम यहाँ शहर से दूर इस सुनसान फार्म हाउस पर एक घटिया लड़की के साथ अयाशियां कर रहे हो। हाशिम के लोग हमारे घर के चक्कर काट रहे हैं।
सैनिटर सिकंदर ने गुस्से से अपनी स्टिक जमीन पर रखी। बाबा साईं, जो कुछ आपने सुना वो झूठ है। मैं यहाँ किसी अय्याशी के लिए नहीं आया। शहराज ने सफाई देने की कोशिश की, मगर रानिया ने बीच में ही अपनी जहरीली जुबान खोली। ओह प्लीज शहराज, अब झूठ तो ना बोलो। हमें पता चला है कि तुम कल रात पहाड़ी से किसी मिडिल क्लास लड़की को उठाकर यहाँ लाए हो। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में है या तुम्हारी बेडरूम में? रानिया ने तंजिया अंदाज में हॉल के चारों तरफ देखते हुए कहा। उसी लम्हे हॉल के कोने में बने छोटे लाउंज के पर्दे के पीछे हल्की सी आहट हुई। रानिया की तेज नजरें वहां गई। शहराज ने उसे रोकने की कोशिश की। रानिया, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, बाहर रहो। क्यों रहूं शहराज? मैं तुम्हारी होने वाली मंगेतर हूँ, रानिया ने ऊंची आवाज में कहा, और शहराज को बाईपास करती हुई तेजी से पर्दे की तरफ बढ़ी। उसे एक झटके से पर्दा हटाया। वहां अलमीना सोफे के पास बेबस खड़ी थी। उसकी आंखों में वहशत थी। रानिया ने अलवीना को ऊपर से नीचे तक देखा। अलवीना का सादा अबाया रो रो कर सूजा हुआ था, और चेहरा और मासूमियत देखकर रानिया का गुस्सा मजीद भड़क उठा। ओह माय गॉड, तो ये है वो लड़की? रानिया ने ऊंची आवाज में तमाशा खड़ा कर दिया। शहराज, तुम्हारी पसंद इतनी घटिया हो सकती? मैं सोच भी नहीं सकती थी। अंकल देखे, ये लड़की यहाँ छुपी बैठी है। ये जरूर कोई ब्लैक मेलर या कोई आम सी कॉल गर्ल है जो शहराज को फंसाने आई है। रानिया के अल्फाज अलवीना के दिल पर तीर की तरह लगे। वो तरफ उठी। मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ, खुदा के लिए मुझ पर तोहमत मत लगाएं। सैनिटर सिकंदर गर्देजी आहिस्ता आहिस्ता चलते वहां पहुंचे। उन्होंने अलवीना पर एक हकारत अमेज नजर डाली। शयान, इस लड़की को अभी इसी वक्त गार्ड के हवाले करो। इसे गाड़ी में डालो और किसी दूर दराज इलाके में फेंकाओ। अगर इसने मुंह खोलने की कोशिश की तो उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी। सैनिटर साहब का हुक्म सुनकर अलवीना के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वो जानती थी कि ये लोग इतने ताकतवर हैं कि उसे गायब कर सकते हैं, और वो किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। शहराज ने देखा कि पानी सर से गुजर चुका है। अगर इस वक्त अलवीना को बाहर भेजा गया तो हाशिम खान के कैमरे बाहर तैयार बैठे हैं। वो फौरन इसे अपने कब्जे में ले लेंगे और गर्देजी खानदान की सियासत सेकंड में खाक में मिल जाएगी। मौका की नजाकत को भांपिए। शहराज गर्देजी पूरे रोब और जलाल के साथ आगे बढ़ा। उसने इंतहाई मजबूती और हक के साथ अलवीना का हाथ अपने हाथ में लिया। अलवीना ने चौंक कर शहराज की तरफ देखा। शहराज की गिरफ्त उसके हाथ पर इतनी मजबूत थी जैसे उसे दुनिया के हर तूफान से बचा रहा हो। बस बहुत हो गया। शहराज की रोबदार आवाज हॉल में गूंजी। सैनिटर सिकंदर ने हैरत से अपने बेटे को देखा। शहराज, ये क्या बदतमीजी है? उस लड़की का हाथ छोड़ो। सैनिटर सिकंदर चिल्लाए। मैं अपनी बीवी का हाथ क्यों छोड़ूं बाबा साहब? शहराज ने नहायत सुकून और मजबूत लहजे में कहा। तो सबके होश उड़ गए। क्या बकवास है ये? रानिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। शहराज, तुम पागल हो गए हो? अलवीना दंग रह गई। उसने अपनी फटी फटी आंखों से शहराज के चेहरे को देखा। वो शख्स जो कल रात उसे अगवा करके लाया था, जो उसे गुनाहगार समझ रहा था, वो अब इसका हाथ पकड़ उसे अपनी बीवी कह रहा था। मैं बिल्कुल होश में हूँ रानिया। शहराज ने सैनिटर सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर कहा। बाबा साईं, ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ना ही ये कोई ब्लैकमेलर है। ये मेरी पसंद है और हम चंद माह पहले खुफिया तौर पर निकाह के बंधन में बंध चुके हैं। मैं इसे यहाँ किसी अयाशी के लिए नहीं लाया, बल्कि हाशिम खान को जब हमारी खुफिया निकाह का इल्म हुआ तो उसने मेरी बीवी को अगवा करके हमारे खिलाफ स्कैंडल बनाने की कोशिश की। मैं तो बस अपनी इज्जत को हाशिम खान के गुंडों से बचाकर यहाँ लाया हूँ। सैनिटर सिकंदर गर्देजी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने अपनी स्टिक हवा में लहराई। तुमने मुझसे छुप कर निकाह किया, एक मिडिल क्लास गुमनाम लड़की से? शहराज, तुमने मेरी तरबियत का ये सिला दिया? बाबा साईं गुस्सा थूक दे और ठंडे दिमाग से सोचे। शहराज ने अपने वालिद के करीब जाकर धीमी मगर काटदार आवाज में कहा। बाहर मीडिया वाले हाशिम खान के इशारे पर गर्देजी खानदान का जनाजा निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आपने इस वक्त अलवीना को बाहर निकाला तो वो साबित कर देंगे कि हमने एक मासूम लड़की को अगवा किया। लेकिन अगर ये बात सामने आई कि वो मेरी कानूनी बीवी है तो हाशिम खान का पूरा प्लान उल्टा हो जाएगा। मीडिया हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हाशिम खान के खिलाफ बोलेगा, और उसने एक शादीशुदा औरत पर तोहमत लगाने की कोशिश की। फैसला आपका है। आपको अपनी सियासत बचानी है या फिर तमाशा देखना है? सैनिटर सिकंदर गर्देजी एक मंजे हुए सियासतदान थे। शहराज के इस मंतक ने उनके गुस्से को यकलख्त ठंडा कर दिया।
अगरचे उनके अंदर की नफरत बरकरार थी, वो जानते थे कि शराज ने जो झूठ बोला है उस वक्त गर्देजी खानदान की बका सिर्फ उसे झूठ को सच मानने में थी। उन्होंने अलवीना की तरफ देखा, जो अभी तक शराज के हाथ की गिरफ्त में सदमे से कांप रही थी, और फिर अलवीन रानिया की तरफ देखा, जो कि रो रही थी। ठीक है, सेनेटर सिकंदर ने गहरा सांस लेते हुए कहा। उनका लहजा सर्द पड़ चुका था। अगर ये तुम्हारी बीवी है तो ये यहीं रहेगी, लेकिन याद रखना शराज, इलेक्शन तक की बात मीडिया में इसी तरह जानी चाहिए जैसा तुम कह रहे हो। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सेनेटर सिकंदर मुड़े और रानिया का बाजू पकड़कर उसे जबरदस्ती हॉल से बाहर ले गए। रानिया रोती और चिल्लाती रह गई, अंकल ये झूठ है, शराज साहब से झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही बैरूनी दरवाजा बंद हुआ और गाड़ियों के जाने की आवाज आई, शराज ने आहिस्ता से अलवीना का हाथ छोड़ दिया। अलवीना दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। उसने कांपती आवाज में शराज से पूछा, आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आपने मुझे अपनी बीवी क्यों कहा? शराज ने अपनी बास्केट को दुरुस्त किया। उसके चेहरे पर दोबारा वही तासुर ले आया। उसने अलवीना को देखा और सर्द लहजे में बोला, मैंने ये झूठ तुम्हारी जान बचाने और अपने खानदान की सियासत को हाशिम खान के मोहरे से पाक करने के लिए बोला है, और तुम इस फार्म हाउस से बाहर नहीं जा सकती मिस अलवीना, क्योंकि अब तुम पूरी दुनिया की नजर में शराज गर्देजी की बीवी बन चुके हो। अलवीना ने बेबसी से अपने हाथ को देखा, जहां अब भी शराज के हाथ की गरमाइश महसूस हो रही थी। रानिया अपने कमरे में दीवानावार चक्कर काट रही थी। उसका चेहरा हसद और इंतकाम की आग से सुर्ख हो रहा था। वो किसी भी कीमत पर इस मिडिल क्लास लड़की को शराज की जिंदगी में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। शराज, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम सेनेटर सिकंदर गर्देजी की सियासत बचाने के लिए इस 2 टके की लड़की को गर्देजी खानदान की बहू बता रहे हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। रानिया ने दांत पीसते अपने आप से वादा किया। उसके जहन में एक बदतरीन और खतरनाक साजिश ने जन्म लिया था। वो जानती थी कि अगर अलवीना यहाँ से भाग जाती है तो मीडिया के सामने शराज का झूठ बेनकाब हो जाएगा और अलवीना हमेशा के लिए बदनाम होकर गर्देजी खानदान के रास्ते से हट जाएगी। दूसरी तरफ अलवीना अपने कमरे में बैठ घुटनों में सर्दी सिसक रही थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। एक तरफ दोस्तों की होलनाक गद्दारी का सदमा था, तो दूसरी तरफ शराज गर्देजी के नाम का वो हिसार जिसमें वो कैद हो चुकी थी। अचानक कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और बगैर जवाब का इंतजार किए रानिया अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर अब वो गुस्सा नहीं था, बल्कि उसने मुनाफिकत का लबादा और रखा था। अलवीना ने सहम कर रानिया को देखा और बेड से पीछे हट गई। आप यहाँ क्यों आई हैं? रानिया ने इधर उधर देखा और आहिस्ता कदमों से अलवीना के करीब आकर धीमी आवाज में बोली, शट अप। ऊंची आवाज में बात मत कर, फायर गार्ड करेंगे। देखो लड़की, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई। मैं जानती हूँ कि शराज ने निकाह का सरासर झूठ बोला है। अलवीना ने हैरत से रानिया को देखा। रानिया ने उसका फायदा उठाते बात जारी रखी। शराज एक बेरहम इंसान है। वो तुम्हें अपनी सियासत का मोहरा बनाकर यहाँ कैद रखेगा और जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो तुम्हें किसी गुमनाम मौत की घाट उतार देगा या फिर हमेशा के लिए जेल भेज देगा। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इस जहन्नुम में गुजारना चाहती हो? नहीं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे मेरे माँ बाप के पास जाना है। अलवीना की आंखों में उम्मीद की चमक उभरी। तो फिर मेरी बात सुनो। रानिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उकसाया। मैंने बाहर के गार्ड को चाय में नशा और गोली मिलाकर दे दी है। वो इस वक्त गफलत की नींद सो रहे हैं। फार्म हाउस का अब भी दरवाजा खुला है। तुम अभी इसी वक्त वहां से निकल जाओगी, मेन रोड से। वहां तुम्हें कोई भी गाड़ी मिल जाएगी और तुम अपने घर पहुंच जाओगी। जाओ, इससे पहले कि शराज को पता चले कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अलवीना इतनी मासूम और हालात से घबराई हुई थी कि रानिया की आंखों में छुपी खबासत को ना पढ़ सकी। उसे लगा कि रानिया वाकई उसकी मदद कर रही है। थैंक यू, अलवीना ने लड़ती आवाज में कहा। अपना अबाया दुरुस्त किया और दबे पांव रानिया के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ी। रानिया के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। वो नहीं जानती थी कि फार्म हाउस के बाहर उस वक्त शराज के दुश्मन हाशिम खान के मसलहा गुंडे पहले ही पोजीशन लिए बैठे थे। अलवीना धड़कते दिल के साथ फार्म हाउस की तारीख राहदारियों से होती हकवी दरवाजे तक पहुंची। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजा धकेला। बाहर पहाड़ी इलाके की यख बस्ता हवा ने उसके चेहरे को छुआ। चारों तरफ घना अंधेरा था और ऊंचे दरख्तों के साए भूतों की तरह लग रहे थे। वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, अचानक झाड़ियों में से 3
तंदुरुस्त और मसलहा नकाब पोश गुंडे नमूदार हुए। इससे पहले कि अलवीना के हलक से कोई चीख निकलती, एक गुंडे ने उसके मुंह पर अपना बाहरी हाथ रख दिया और दूसरे ने उसके बाजू जकड़ लिए। मिल गई लड़की, यही है शराज गर्देजी की उस सो कॉल्ड बीवी। उठाओ इसे, साहिब ने कहा कि इसे जिंदा लेकर आना है, इसके जरिए गर्देजी खानदान का सौदा होगा। एक गुंडे ने भारी और वहशियाना अंदाज में कहा। अलवीना ने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दिल ही दिल में खुदा को पुकार रही थी कि काश वो रानिया की बात पर यकीन न करती। गुंडे उसे जबरदस्ती घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगे। उसी लम्बे फार्म हाउस के मॉनिटरिंग रूम में शराज गर्देजी की नजरें सिक्योरिटी कैमरों पर गई। पिछले गेट के कैमरों पर होने वाली हलचल और स्क्रीन पर अलवीना को गुंडों के जंगल में देखकर उसके खून की गर्दिश तेज हो गई। उसने शयान को आवाज देने के लिए हाथ उठाया, मगर वक्त इतना कम था कि अगर वो गार्ड को इकट्ठा करता तो गुंडे अलवीना को लेकर पहाड़ों में गायब हो जाते। शराज ने बगैर एक सेकंड जाए कि अपनी बास्केट से ऑटोमेटिक पिस्टल निकाली, उसे लोड किया और अकेला ही अकबी दरवाजे की तरफ दौड़ गया। जंगल के अंधेरे में गुंडे अलवीना को गाड़ी तक पहुंचाने ही वाले थे कि पीछे से रोबदार आवाज आई, अपनी जगह पर रुक जाओ वरना अगला कदम तुम्हारी जिंदगी का आखिरी कदम होगा। गुंडों ने चौंक कर मुड़कर उसे देखा। अंधेरे में शराज गर्देजी खड़ा था। उसकी आंखों में सख्ती थी और पिस्टल का रुख सीधा उसकी तरफ था। ओह, तो छोटे खान खुद आ गए। यारो, इसका काम तमाम कर दो, साहब को ये जिंदा नहीं चाहिए। गुंडों के सरगना ने चिल्लाते हुए अपनी गन सीधी की। इससे पहले कि वो गन चलाता, शराज की पिस्टल से आग का शोला निकला था। पहली ही गोली सरगना के हाथ पर लगी और उसकी गन दूर जा गिरी। वो दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर बैठ गया। बाकी दो गुंडों ने अलवीना को झटके से जमीन पर पटका और शराज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस अफरा तफरी में जख्मी सरगना ने जमीन पर पड़ी गन दूसरे हाथ में उठाई और दरख्त के पीछे से निकलते शराज पर निशाना लेकर फायर किया। शराज। अलवीना के हलक से पहली बार शराज का नाम निकला। गोली शराज के दाएं कंधे को छूते गुजर गई। उसके गलफ लगे गिरे कुर्ते उस सेकंड में खून का एक बड़ा सुर्ख धब्बा उभर आया। शराज ने दर्द की एक शदीद लहर महसूस की, मगर उसके चेहरे की सख्ती कम नहीं हुई। जंगल में एक बार फिर से मौत का सा सन्नाटा छा गया। शराज ने गहरा सांस लिया। उसके पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और दाएं बाजू से खून तेजी से बहकर जमीन पर टपक रहा था। वो रोती हुई अलवीना को करीब आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उठो अलवीना, अब सब ठीक है, तो महफूज हो। अलवीना ने शराज के जख्मी कंधे को देखा जहां से खून उबल रहा था। वो सदमे और पछतावे की दलदल में डूब गई। आपको गोली लग गई। आपको मेरे लिए सब कहने की क्या जरूरत थी? मैं तो आपकी कैदी थी, अलवीना ने हिचकियां लेते हुए कहा। उसकी आवाज में शराज के लिए मौजूद सारी नफरत की लख्त पिघल चुकी थी। शराज ने उसका बाजू पकड़कर खड़ा किया। मैंने नीचे अपने बाप के सामने पब्लिक और मीडिया के लिए झूठ बोला था। मैं मिस अलवीना, लेकिन शराज गर्देजी के हिसार में आई हुई औरत, चाहे वो किसी साजिश के तहत ही क्यों ना, उसकी हिफाजत करना मेरी गारत का तकाजा है। मैं दुश्मनों को अपनी हरकत पर हाथ डालने की इजाजत नहीं देता। वो इसे अपने साथ लगाकर आहिस्ता आहिस्ता फार्म हाउस के अंदर ले आया और लकड़ी का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। अलवीना ने जब अंदर आकर मुड़कर शराज को देखा, वो दर्द के बावजूद अपने वकार को बरकरार रखे खड़ा था। उसके दिल के किसी कोने में शराज के लिए कुछ अनकहे जज्बात भी सर उठाने लगे। फार्म हाउस की बत्तियां मदम कर दी गई थी और बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नफरी दुगनी कर दी गई थी। कुछ ही देर में गर्देजी खानदान के खानदानी मालिक डॉक्टर तैमूर शायान के साथ कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में मेडिकल किट थी। कमरे के एक कोने में बड़ी बी और अलवीना खामोशी से खड़ी थी। अलवीना की नजरें बार बार शराज के उस जख्म पर जा रही थी जिसने उसके दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। डॉक्टर तैमूर ने तेजी से अपना काम शुरू किया। उन्होंने जख्म को डिटोल से साफ किया तो शराज के जबड़े सख्ती से भींच गए, मगर उसके मुंह से कोई सिसकार ही ना निकली। अलवीना ने बेख्तियार अपने हाथ की उंगलियां आपस में जकड़ ली, जैसे वो दर्द शराज को नहीं बल्कि उसे हो रहा हो। छोटे खान, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, डॉक्टर तैमूर ने जख्म पर टांके लगाते हुए कहा। गोली सिर्फ गोश्त को छूकर गुजरी है, हड्डी या कोई अहम रग महफूज है, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से जिस्मानी कमजोरी होगी। मैंने एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा दिया है और पट्टी कर दी है। शुक्रिया डॉक्टर, कब तक ठीक हो जाऊंगा? शराज ने अपनी भारी आवाज में पूछा। जख्म तो चंद दिनों में ही बढ़ जाएंगे, लेकिन अगले चंद घंटे बहुत अहम है।
ڈاکٹر تیمور نے اپنی کٹ بند کرتے ہوئے بڑی بی کی طرف دیکھا۔ انجیکشن اور گولی کے اثر سے چھوٹے خان کو رات میں بہت تیز بخار ہو سکتا ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی ہوں اور درد دوا وقت پر دینی ہوگی۔ انہیں رات پر کسی کو دیکھ بھال کے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر، میں ہوں نا، بڑی بی نے کمزور آواز میں کہا۔ ڈاکٹر تیمور انہیں ہدایت دے کر شایان کے ساتھ باہر نکل گئے تھے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد بڑی بی نے جیسے ہی شراز کے لیے کچن سے گڑپ سوپ لینے کے لیے مڑی، اچانک ان کا سر چکرایا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ بڑی بی، الوینا نے لپک کر انہیں سہارا دیا اور پاس رکھی کرسی پر بٹھایا۔ شراز نے بیڈ پر ہی تشویش سے دیکھا۔ بڑی بی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، شایان کسی دوسرے ملازم کو بھیج دے گا۔ نہیں چھوٹے خان، اس وقت باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، فارم ہاؤس کے باقی ملازمین پر ابھی شایان کو پورا بھروسہ نہیں ہے۔ رانیہ بی بی کی حرکت کے بعد ہم کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے، بڑی بی بی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ الوینا نے ایک نظر شراز کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی، جس کی آنکھیں اب بخار کی تپش سے سرخ ہو رہی تھی۔ بڑی بی، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں اور سو جائیں۔ الوینا نے آگے بڑھ کر بڑی بی کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کا لہجہ اب نہایت پراعتماد تھا۔ آپ کے چھوٹے خان کا خیال میں رکھوں گی، میں رات بھر جا کر ان کی پٹیاں بھی کر دوں گی اور دوائیاں بھی دے دوں گی۔ شراز نے حیرت سے الوینا کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی جو کل تک اسے ایک ظالم انسان سمجھ کر اسے دور بھاگ رہی تھی، وہ اب خود اس کی تیمارداری کے لیے تیار کھڑی تھی۔ تم؟ شراز کے لبوں سے یہی لفظ نکل سکا۔ ہاں، میں۔ الوینا نے شراز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آپ نے میرے لیے گولی کھائی ہے مسٹر شراز گردیزی، میں اتنی احسان فراموش نہیں ہوں۔ بڑی بی، آپ جائیں۔ بڑی بی نے الوینا کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تو ان کے دل کو اطمینان ہو گیا۔ وہ الوینا کو دعائیں دیتی اپنے کمرے کی جانب چل گئی۔ رات کے 12 بجے تک شراز کا جسم تندور کی طرح دہکنے لگا۔ ڈاکٹر کے کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی۔ سر شراز بخاری نے اپنی لپیٹ میں اسے بخار نے لے لیا تھا۔ وہ بستر پر نیم دراز بے ہوشی کی حالت میں کروٹیں بدل رہا تھا اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکیاں بھی نکل رہی تھی۔ الوینا نے ایک باؤل سے ٹھنڈا پانی لیا، ایک سفید کپڑا اس میں بھگو کر شراز کے ماتھے پر رکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی ٹھنڈا کپڑا شراز کی تپتی پیشانی سے ٹکرایا، اسے تھوڑا سا سکون ملا۔ الوینا مسلسل یہ عمل دہرا رہی تھی۔ وہ ہر 2 منٹ بعد کپڑا بدلتی، اس کے ماتھے پر پسینہ پوچھتی۔ رات کے 2 بجے شراز کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ شدید بخار کی حالت میں ہذیانی انداز میں بڑبڑانے لگا۔ الوینا نے گھبرا کر اس کے دونوں کندھے پکڑنے چاہے۔ شراز، آرام سے رہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں ہیں۔ اچانک شراز نے نیم بے ہوشی کے عالم میں الوینا کے دونوں بازو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے گرفت میں لے لیے۔ اس کی گرفت میں درد اور التجا تھی جو کہ الوینا کے دل کو پار اتر رہی تھی۔ شراز نے آنکھیں کھولی مگر ان آنکھوں میں بخار کی تپش تھی۔ وہ الوینا کو دیکھ رہا تھا مگر شاید اپنی بے ہوشی میں نہیں تھا۔ الوینا، شراز کی آواز بہت دھیمی اور گہری تھی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں غلط سمجھا، میں نے تمہیں کال کر کہا، لیکن تم تو بہت معصوم ہو۔ الوینا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور اس کا ہاتھ شراز کی گرفت میں تھا۔ سنو الوینا، شراز نے اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے لگایا جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھی۔ میں گردیزی ہوں، میں نے اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ تم میری بیوی ہو، لیکن اب شراز گردیزی کے ہوتے کوئی تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں ہاشم خان کو تمہارے پاک دامن پر داغ نہیں لگانے دوں گا، تو محفوظ ہو میرے اظہار میں۔ یہ کہتے کہتے شراز کی اکھڑتی سانسیں آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگی اور وہ دوبارہ گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا، مگر اس نے الوینا کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی الوینا کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھا۔ الوینا وہیں بیٹھ کے کنارے زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھ کے کنارے سر ٹکائے قبض ہو گئی، اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ صبح شراز کا بخار پوری طرح سے اتر چکا تھا اور جسم کا درد بھی کم تھا۔ شراز نے جیسے بے ہوشی میں آ کر اپنا بایاں ہاتھ ہلانا چاہا، اسے کسی نرم لمس کا احساس ہوا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، الوینا بیٹھ کے بالکل کنارے زمین پر بیٹھی سو رہی تھی۔ اس کا سر بیٹھ کے گدے پر تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اب بھی شراز کے ہاتھوں کے اندر محفوظ تھے۔ اس کے چہرے پر صبح کی روشنی چمک رہی تھی جس سے اس کی معصومیت مزید نکھر آئی تھی۔ شراز چند منٹ تک سانس روکے سے دیکھتا رہا۔ اس کے سخت اور مغرور دل میں ایک ایسی نرمی ابھری جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا
मगर अलवीना की आंखें खुल गई थी। उसने बुड़बुड़ा कर सर उठाया। आपको बुखार आपका कैसा है? अलवीना ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुकाई और अपने बिखरे बाल दुरुस्त किए। मैं ठीक हूँ मिस अलवीना, रात भर मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया, शराज ने नहायत मदम और बावखार लहजे में कहा। अलवीना ने मुस्कुराकर पानी का बाउल उठाया। ये मेरा फर्ज था। इसी दौरान अचानक कमरे का दरवाजा शान ने बगैर दस्तक दिए खोल दिया। उसके चेहरे पर शदीद खौफ और परेशानी के तासुरात थे, जैसे वहां कोई बहुत बड़ा धमाका हो चुका हो। छोटे खान, गजब हो गया, बाहर की दुनिया में तूफान आ गया है। हाशिम खान ने मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और अलमीना के वालिदैन को अपने साथ लेकर गर्देजी हाउस के बाहर धरना दे दिया है। शान की इस खबर ने कमरे के सुकून को एक सेकंड में खाक में मिला दिया। शहराज और अलवीना दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। तूफान अब उनके बिल्कुल दहलीज पर आकर खड़ा हो गया था। अलवीना के मासूम और सफेद पोश वालिद अनवर साहब पिछले 24 घंटे से घर के सहन में दीवाना वार चक्कर काट रहे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों के गिर्द से हल्के थे। उनकी रात भर बेचैनी का उन्हें पता दे रही थी। उनकी अहलिया फरीदा बेगम जानमाज बिछाए बैठी रो रो कर दुआएं मांग रही थी। अलवीना का मोबाइल मुसलसल बंद जा रहा था और कॉलेज की इंतजामिया के पास भी ट्रिप की वापसी के हवाले से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। इसी अवस्था में घर के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनवर ने लपक कर दरवाजा खोला। सामने जोया और दानियाल खड़े थे। दोनों के चेहरे पर परेशानी के असरात थे। अंकल, अंकल गजब हो गया। जोया ने अंदर दाखिल होते हुए तमाशा शुरू कर दिया। फरीदा बेगम भी जायनमाज से उठकर बुड़बुड़ा कर लाहौज में आ गई। जोया बच्ची, दानियाल बेटा, मेरी मेरी अलवीना कहाँ है? तुम लोग वापस आ गए, मेरी बच्ची कहाँ है? खुदारा सच बताओ। दानियाल ने नजरें झुकाने का नाटक किया और इंतहाई अफसरदा लहजे में बोला, आंटी, हमें माफ कर दे। हम अलवीना को रोकते रहे। हमने उसे बहुत समझाया कि वो अपने वालिदैन की सफेद पोशी और इज्जत का ख्याल करे, लेकिन वो किसी अमीर लड़के के जानसे में आ गई थी। अनवर साहब के पांव तले से जमीन निकल गई। उन्होंने दानियाल के कंधे जकड़ लिए। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी मासूम है, वो किसी के जानसे में नहीं आ सकती। वो तो तुम लोगों के साथ कॉलेज की ट्रिप पर गई थी। अंकल, वो ट्रिप तो सिर्फ एक बहाना था। जोया ने जहर उगला। पहाड़ी इलाके में हमारी मुलाकात सूबे के सबसे बड़े सियासतदान के बेटे शराज गर्देजी से हुई थी। अलवीना पहले से उसे जानती थी। उसने सबके सामने शराज को छेड़ा, उसे इशारे किए और फिर रात के अंधेरे में अपनी मर्जी से शराज गर्देजी की कीमती गाड़ी में बैठकर उसके फार्म हाउस चले गई। हमने उसे रोका तो उसने कहा कि वो मिडिल क्लास जिंदगी से तंग आ चुकी है और अब वो एक अमीर कबीर खानदानी लड़के के साथ अयाशी की जिंदगी गुजारेगी। खामोश हो जाओ बदजुबान लड़की। फरीदा बेगम ने तड़प कर जोया को पीछे धकेला। मिस अलवीना मेरी ऐसी नहीं है। उसने कभी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। आंटी, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो उसका मोबाइल क्यों बंद है? दानियाल ने आखिरी बार किया। वो इस वक्त शराज गर्देजी के फार्म हाउस पर ऐश कर रही है और पूरा शहर अब इस बात को जान चुका है। उसी वक्त शहर के एक दूसरे कोने में वाक़ एक आलीशान और तरीक दफ्तर में सेनेटर सिकंदर गर्देजी का बदतरीन सियासी हरीफ हाशिम खान एक सोफे पर बैठा सिगार पी रहा था। उसके सामने जोया और दानियाल की दी हुई मालूमात और कुछ तस्वीर मेज पर बिखरी हुई थी। उसके पास शहर की छोटी मीडिया रिपोर्टर्स खड़े थे। साहब, लड़के और लड़की के वालिदैन का आमना सामना हो चुका है। दोस्तों ने अपना काम कर दिया है। हाशिम खान के खास आदमी तारिक ने इतला दी। हाशिम खान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। उसने सिगार की राख जाड़ी और सामने खड़े मीडिया रिपोर्टर की तरफ देखा। तुम लोगों को किस चीज का इंतजार है? ब्रेकिंग न्यूज चलाओ। पूरे मुल्क के मीडिया पर यह खबर आग की तरफ फैल जानी चाहिए। अनुमान होना चाहिए कि गर्देजी खानदान की गुंडागर्दी या अयाशी। सेनेटर सिकंदर गर्देजी के बेटे शराज गर्देजी ने कॉलेज की मासूम तलबा को अगवा करके फार्म हाउस में कैद कर लिया। लड़की के दोस्तों के बयानात लाइव चला। इलेक्शन का वक्त है। मैं सेनेटर सिकंदर को इस बार ऐसा जला कर राख करूंगा कि उसकी सियासत का नामो निशान मिट जाएगा। जी खान साहब, बस आधे घंटे में ये खबर स्क्रीन पर होगी और हमारे रिपोर्टर गर्देजी हाउस का घेराव कर लेंगे। एक सेनेटर रिपोर्टर ने सर झुकाकर और तेजी से बाहर निकल कर कहा। उधर अलवीना के घर के लाउंज में लगे टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। टीवी स्क्रीन पर अलवीना की तस्वीर और उसके नीचे शराज गर्देजी का नाम देखकर लाउंज में जैसे क़यामत टूट पड़ी।
اسکرین پر دانیال اور زویا کے پہلے سے ریکارڈ شدہ بیانات چل رہے تھے، جن میں وہ الوینا کو ایک بد کردار اور لالچی لڑکی ثابت کر رہے تھے جو شراز کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ انور صاحب نے اسکرین کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں پھٹ گئی، سانس اکھڑنے لگی۔ چند سال کی شرافت، سفید پوشی اور عزت سیکنڈوں میں لائیو ٹی وی پر نیلام ہو رہی تھی۔ میری بیٹی، میری معصوم بچی، انہوں نے پگڑی اچھال دی اس کی۔ انور صاحب نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جہاں ایک شدید جان لیوا درد نے انگڑائی لی۔ ان کا چہرہ سیکنڈوں میں زرد پڑ چکا تھا۔ الوینا کے بابا، فریدہ بیگم چلائی۔ انور صاحب ایک گہری آہ بھر کر فرش پر گر پڑے۔ انہیں دل کا شدید دوڑا پڑا۔ فریدہ بیگم پڑوسیوں کی مدد سے انور صاحب کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے دوڑ لگا گئی۔ مڈل کلاس کرانے کا سکون ملیا میٹ ہو چکا تھا، اور الوینا کے معصوم والدین اس جال میں بری طرح سے پھنس چکے تھے جو ہاشم خان نے بنا تھا۔ شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع گردیزی ہاؤس کے باہر اس وقت جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ میڈیا رپورٹر، کیمرہ مین اور مائک تھامے صحافی بنگلے کے گیٹ کو گھیرے ہوئے تھے۔ سیکیورٹی گارڈ نے گیٹ اندر سے بند کر رکھا تھا، مگر باہر میڈیا کا شور آسمان کو چھو رہا تھا۔ سر، کیا شراز گردیزی نے واقعی لڑکی کو اغوا کیا ہے؟ سینیٹر سکندر گردیزی الیکشن مہم چھوڑ کر کہاں غائب ہیں؟ کیا وہ اپنے بیٹے کی گناہ پر پردہ ڈال رہے ہیں؟ لڑکی کے والدین نے شراز گردیزی کے خلاف کیا قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے؟ میڈیا کے چھپتے سوالات لائیو ٹی وی پر نشر ہو رہے تھے، جس نے گردیزی خاندان کی سیاست ساکھ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہاشم خان کا تیر بالکل نشانے پر لگا، اور اب گردیزی خاندان کے پاس اس طوفان سے بچنے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، سوائے اس بڑے جھوٹ کے جسے شراز نے فارم ہاؤس میں کہا تھا۔ سٹی اسپتال کا کوریڈور اس وقت کسی جنگ کا میدان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فضا میں تناؤ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ سانس لینا بھی بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ انور صاحب آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، جبکہ باہر میڈیا کے کیمروں اور رپورٹرز کا ایک ہجوم تھا جو گردیزی خاندان کے زوال کی لائیو کوریج کے لیے بےتاب تھا۔ ہسپتال پہنچنے میں چند منٹ پہلے شراز کی گاڑی میں اس کا فون بے در پہ بج رہا تھا۔ اسکرین پر سینیٹر سکندر گردیزی کا نام چمک رہا تھا۔ شراز نے جیسے ہی فون اٹھایا، دوسری طرف اس کے والد کی غصیلی اور بوکھلائی ہوئی آواز آئی، شراز، تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس لڑکی کو سیدھا لے کر اسپتال جا رہے ہو جہاں میڈیا پہلے سے موجود ہے۔ ہاشم خان نے ہماری سیاست کا جنازہ نکال دیا ہے۔ میری بات سنو، اپنی گاڑی گھماؤ، شیان سے کہو کہ اس لڑکی کو شہر سے باہر کہیں غائب کر دے۔ اگر الیکشن ہار گئے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لڑکی کا غائب ہونا ہی ہماری بقا ہے۔ شراز نے الوینا کو دیکھا جو اپنے باپ کے صدمے میں نڈال سر جھکائے اپنے باپ کے لیے رو رہی تھی۔ اس لڑکی کی معصومیت نے شراز گردیزی کو اندر سے اکثر بدل دیا تھا۔ بابا سائی، شراز کا لہجہ نہایت باوقار، روبدار مگر اٹل تھا۔ میں نے زندگی پر آپ کی سیاست فیصلوں کے سامنے سر جھکایا، لیکن آج نہیں۔ الوینا کوئی مہرا نہیں ہے، وہ بے قصور ہے۔ اگر میں نے آج اسے غائب کر دیا تو ہاشم خان کا جھوٹ سب ثابت ہو جائے گا۔ میں اپنی سیاست بچانے کے لیے کسی معصوم کی عزت جان کا سودا نہیں لگا سکتا۔ اب کھیل میں بدلوں گا، بس آپ ٹی وی اسکرین دیکھیں۔ ایک کہہ کر شراز نے فون بند کر دیا اور گاڑی اسپتال کے بورڈ میں جا رکی۔ جیسے ہی کالی لینڈ کروز میں شراز گردیزی اترا اور اس نے بھڑ کر الوینا کی گاڑی سے اسے اتارا، میڈیا کے رپورٹرز مائک اور کیمرے لیے اس پر ٹوٹ پڑے۔ شیان اور سیکورٹی گارڈ نے گھبرا کر انہیں اندر آ جانے کی کوشش کی، مگر رپورٹر کے سوالات کی بوچھار جاری تھی۔ شراز صاحب، کیا آپ نے اس طالبہ کو اغوا کیا تھا؟ الوینا، کیا یہ سچ ہے؟ تم اپنی مرضی سے شراز کے ساتھ بھاگی تھی؟ الوینا خوف سے شراز کے کرتے کی آستین کو جکڑ رکھی تھی، اور شراز ایک مضبوط ڈھال کی طرح اس کے آگے کھڑا تھا۔ اسی لمحے ہاشم خان اپنے پورے جاہو جلال، مسلحہ گارڈز اور اپنے دائیں بائیں زویا اور دانیال کو لیے فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے گردیزی خاندان کا شکار کر لیا ہو۔ ٹھہریے میڈیا والو، جلدی مت کیجیے، اصل مجرم تو آپ کے سامنے ہے۔ آئیے آئیے چھوٹے خان، تو آخر کار آپ اپنی معشوقہ کو لے کر آ ہی گئے۔ ہاشم خان نے طنزیہ کہکا لگایا، پھر اس نے کیمروں کی طرف رخ کیا۔ دیکھو پاکستان کے غیرت مند عوام، یہ ہے سینیٹر سکندر گردیزی کا بیٹا، جو الیکشن کے دنوں میں غریب اور سفید پوش انسان کی بیٹی کو اغوا کر کے عیاشیاں کرتا ہے۔ اس معصوم لڑکی کے باپ کو اس صدمے میں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ یہاں آئی سی یو میں ہے، اور یہ ظالم شخص اب بھی لڑکی کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔
जोया ने फौरन अपने आंसू बहाने का नाटक शुरू कर दिया। हाँ मीडिया वालों, हम चश्मदीद गवाह हैं। हलवीना हमारी दोस्त थी। शराज गर्दीजी ने उसे जबरदस्ती उठाया और हमें जान से मारने की धमकियां दी। दानियाल भी भांग लगाई थी। हमें इंसाफ चाहिए। शराज गर्दीजी को जेल होनी चाहिए। अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद अलवीना की माँ फरीदा बेगम रोती हुई आगे बढ़ी। अलवीना मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? हाशिम खान, जोया और दानियाल समझ रहे थे कि उन्होंने शराज के रंगे हाथों से पकड़ा कर गर्दीजी खानदान की सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी। लेकिन शराज गर्दीजी के चेहरे पर खौफ का एक जर्रा भी नहीं था। उसके लबों पर वही मखसूस सी मुस्कुराहट उभरी। वो एक कदम आगे बढ़ा और उसने एक सेनेटर रिपोर्टर के सामने माइक किया। हाशिम खान, तुमने बिसात बहुत अच्छी बिछाई थी, लेकिन बदकिस्मती से मोहरे बहुत सस्ते और घटिया चुन लिए। शराज की आवाज पूरे अस्पताल और लाइव टीवी के जरिए पूरे मुल्क में गूंजी। क्या बकवास है ये? तो मीडिया के सामने अपनी अयाशी पर पर्दा नहीं डाल सकते? हाशिम खान तिलमिलाया। मीडिया के सामने तुम्हारा वो बेनकाब चेहरा होना चाहिए जो इस मुल्क के कानून के पीछे छुपा है। शराज ने शायान की तरफ इशारा किया। शायान, प्ले द वीडियो। शायान ने फौरन अपने हाथ में मौजूद टैबलेट को अस्पताल के बड़े डिजिटल स्क्रीन और लाइव टीवी चैनल्स की लाइव फीड्स पर कनेक्ट कर दिया। अगले ही सेकंड पूरे पाकिस्तान की स्क्रीन पर एक सीसीवी टीवी फुटेज और इंतहाई वाज़िया ऑडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी। वीडियो में एक तरीक रेस्टोरेंट का मंजर था, जहां हाशिम खान का राइट हैंड तारिक बैठा था और उसके सामने जोया और दानियाल मौजूद थे। दानियाल, तारिक उनके सामने 50-50 लाख रुपए पड़े 2 बैग्स रखता और दानियाल की आवाज स्क्रीन पर गूंजती है। ओके सर, प्लान के मुताबिक हम अलवीना को पहाड़ी पर ले जाएंगे और उसे शराज गर्दीजी के सामने कर देंगे। जैसे ही शराज का कोई गार्ड वहां, वो खुद अलवीना पर हाथ उठाएगा। आपने कैमरे में वीडियो बस रिकॉर्ड कर लेनी है। इलेक्शन से पहले गर्दीजी खानदान का ये स्कैंडल हाशिम साहिब को जितवाएगा। बस हमें बाकी सारे पैसे भी वक्त पर मिल जाने चाहिए। जैसे ये वीडियो और ऑडियो लाइव टीवी पर चली, अस्पताल के हॉल में जैसे सांप सूंघ गया। हाशिम खान का चेहरा सेकंडों में सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। जोया और दानियाल के पैरों तले से जमीन निकल गई। उनके चेहरे पर मौजूद झूठी मसलूमियत सेकंडों में गायब हो गई। मीडिया के कैमरे अब हाशिम खान, जोया और दानियाल के चेहरों का क्लोजअप ले रहे थे। रिपोर्टर्स जो अभी तक शराज पर सवाल उठा रहे थे, अब हाशिम खान पर टूट पड़े थे। हाशिम खान साहब, ये क्या है? आपने एक मासूम लड़की की जिंदगी का सौदा किया। जोया, दानियाल, तुम लोगों ने 50 लाख रुपए के लिए अपनी सहेली को बेच दिया। ये सब झूठ है, ये वीडियो फेक है। हाशिम खान चिल्लाया, मगर उसकी आवाज में कोई दम नहीं था। ये बिल्कुल सच है हाशिम खान। उस समय कॉरिडोर के पीछे से पुलिस फोर्स के साथ सिटी CS दाखिल हुई थी। शराज ने ये सबूत पहले से ही IG पुलिस को भिजवा दिए थे। हाशिम खान, जोया और दानियाल, आप तीनों को एक मासूम शहरी को ब्लैकमेल करने, अगवा की साजिश रचाने और छोटी तोहमत लगाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। SP ने हुक्म दिया। पुलिस एहलकारों ने आगे बढ़कर हाशिम खान, जोया और दानियाल को हथकड़ियां लगा दी। जोया और दानियाल रोते हुए अलवीना के सामने हाथ जोड़ने लगे। अलवीना, हमें माफ कर दो, हमें पैसों का लालच आ गया था। मगर कानून उन्हें घसीटते हुए बाहर ले गए। हाशिम खान का सियासी करियर लाइव टीवी पर हमेशा के लिए दफन हो चुका था। अलवीना की माँ फरीदा बेगम ने जब ये सच देखा तो उनकी आंखें शुक्राने के आंसुओं से बहने लगी। उन्होंने लपक कर अलवीना को अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, मैंने टीवी देखकर तुझ पर शक किया। अलवीना ने रोते अपनी माँ को गले लगाया और फिर उनकी नजरें हॉल के वस्त में खड़े शराज गर्दीजी पर गई। वो शख्स जिसके एक झूठ पर उसने दुनिया की नजर में उसकी बीवी उसे बना दिया था, आज उसी शख्स के सच और वक़ार ने पूरी दुनिया के सामने उसका दामन साफ करके उसे एक नई जिंदगी दी थी। अलवीना की आंखों में शराज के लिए अब सिर्फ और सिर्फ बेपनाह एहतराम और मोहब्बत का एहसास था। अस्पताल के हुसूसी वार्ड में अब सुकून था। डॉक्टर्स ने अनवर साहब को खतरे से बाहर करार दे दिया था और वह उन्हें डिस्चार्ज करने की तैयारी मुकम्मल थी। वार्ड का दरवाजा खुला तो अनवर साहब वहां पर चेयर पर बैठे हुए बाहर आए। उनके साथ फरीदा बेगम और अबाया में मलबूस अलवीना थी। कॉरिडोर में सेनेटर सिकंदर गर्देजी और शराज गर्देजी अपने गार्ड के साथ खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। अनवर साहब ने शराज को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर शराज के दोनों हाथ थाम लिए। शराज बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं?
तुम ने ना सिर्फ मेरी मासूम बच्ची की जान और इज्जत बचाई, बल्कि पूरी दुनिया के सामने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा हूँ कि मैंने टीवी देखकर तुम पर शक किया। अनवर साहब की आवाज़ जज्बात से रोन गई थी। अनवर साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, प्लीज़ शर्मिंदा मत करें मुझे। शराज ने नहायत एहतराम से अनवर साहब के हाथों को दबाया। गलती आपकी नहीं बल्कि उन लोगों की थी जिन्हें आपकी मासूमियत का जिन्होंने फ़ायदा उठाया। अलवीना चंद कदम आगे बढ़ी। उसने चमकती हुई पलकें उठाई और शराज की आंखों में झांका। शराज साहब, अलवीना की अज़ब आवाज़ मध्यम मगर दिलनशी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने हिसाब में रखकर मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं। खुदा हाफिज़। अलवीना मुड़ी अपने वालिदैन के साथ अस्पताल के बाहर की तरफ बढ़ने लगी। ठहरिए अनवर साहब। शराज की आवाज़ कॉरिडोर में गूंजी। अलवीना के कदम भी रुक गए। उसने चौंक कर मुड़ कर देखा। शराज आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अनवर साहब के बिल्कुल सामने आया। उसने अपने दोनों हाथ अनवर साहब के सामने जोड़ दिए। ये मंजर देखकर वहां मौजूद सेनेटर सिकंदर और फरीदा बेगम दंग रह गए। शराज बेटा, ये क्या कर रहे हो? अनवर साहब ने हैरत से पूछा। मैं आपकी बेटी अलवीना का हाथ मांगता हूँ। मैं सच्चे दिल से इसे अपनी शरीक हयात बनाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज ही मौलवी साहब को बुलाकर इस रिश्ते को कानूनी और शरई बंधन में बदलना चाहता हूँ। शराज का ये सरप्राइज प्रपोजल सुनकर अलवीना का चेहरा सेकंडों में शर्मो हया से सुर्ख हो गया। उसने घबराकर अपनी नजरें जमीन में गाड़ ली, मगर उसके लबों पर उभरने वाली दिलकश सी मुस्कुराहट उसकी दिली रजामंदी की गवाही दे रही थी। फरीदा बेगम ने खुशी से अपने आंसू पूछे और अनवर साहब के चेहरे पर इत्मीनान का नूर फैल गया। सेनेटर सिकंदर गर्देसी आगे बढ़े और उन्होंने शराज के कंधे पर हाथ रखा। अनवर साहब, मेरा बेटा जिंदगी में पहली बार किसी के सामने झुका है और किसी चीज का तकाजा किया है। मुझे भी अपनी बहू के तौर पर अलवीना से बेहतर कोई लड़की नहीं मिल सकती। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। अनवर साहब ने मुस्कुराकर अलवीना की तरफ देखा। मेरी बेटी की खामोशी उसका जवाब है। शराज बेटा, मुझे ये रिश्ता सच्चे दिल से मंजूर है। सब लोग खुशी का इजहार कर रहे थे कि उसी लम्हे शराज ने आहिस्ता से चलते हुए अलवीना की जानिब कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में एक शरारती और रोमानवी चमक थी। वैसे मिस अलवीना, आपको मेरा राज मालूम है? शराज ने धीमी आवाज में पूछा, जिसकी तपिश अलवीना के वजूद को छू गई। अलवीना ने हैरत से सर उठाया। कौन सा राज? शराज ने गहरा सांस लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जिस वक्त आपने आगे बढ़कर मुझे वो जोरदार चुटकी काटी थी और इडियट बोलकर मुड़ी थी। शराज गर्देजी उसी पहली नजर में उसी सेकंड अपना दिल आप पर हार चुका था। मैं आपकी इस मासूम शरारत का असीर हो चुका था। इसलिए जब हाशिम खान के गुंडों ने आपको उठाना चाहा तो मैंने उनसे आपकी इज्जत का सौदा नहीं होने दिया और आपको जबरदस्ती अपने फार्म हाउस ले आया ताकि आप दुनिया के हर शर्त से अपने हिसार में आपको रख सकूं। आप मेरे दिल में नहीं फंसी मिस अलवीना। मैं आपकी मासूमियत के साथ आपके हिसार में आपने मुझे कैद कर लिया था। शराज का एक खूबसूरत और हैरान कुन इंकशाफ सुनकर अलवीना का दिल बाग बाग खिल उठा। उसे अंदाजा ही नहीं था कि जिसे वो एक खौफनाक वाकया समझ रही थी वो दरअसल शराज की पहली नजर की मोहब्बत का आगाज था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। शराज ने उसका हाथ थाम लिया। अलवीना ने मुस्कुराकर उसे देखा, क्योंकि वो जानती थी कि शराज से ज्यादा उसे कोई नहीं चाह सकता।